Hello students, today we are going to talk about electric flux. आज ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ topic ਹੈ we will be talking or we will be discussing about electric flux. ਹੁਣ electric flux ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਹੈ that is something called as area vector. देखो बच्चों एरिया बारे तुसी सारिਆਂ ने सुनिया होया है ना। अगर मान लो मैं इस रेक्टेंगुलर रूम दे एरिया दी गल करा तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ ये एरिया बनेगा। हुणे जिहड़ी लेंथ ते ब्रेड्थ है यह सिर्फ मैग्नीट्यूड दा बोध करवाउंदी है या मैग्नीट्यूड दा जिक्र करवाउंदी है। बट तुहानू अज ये जान के हैरानी होएगी कि एरिया दे लवे सिर्फ मैग्नीट्यूड ही नहीं हुंदा, it has also got direction as well. मेरे कहने का मतलब ये है भी एरिया एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। और तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि वेक्टर लवे दो चीजां ਹੁੰਦੀਆਂ ने, one is magnitude and second is direction, right? तब बेटा मैग्नीट्यूड ਦਾ ਸਾਨੂੰ अलग-अलग ज्योमेट्रिकल फिगर्स ਦਾ कढ़ना आना है इन टर्म्स ऑफ एरिया। लाइक सपोज मेरे लवे कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर है और उसका मैंने एरिया का मैग्नीट्यूड करना है तो फ्रॉम ज्योमेट्री फ्रॉम माय प्रीवियस क्लासेस मैंने ऑलरेडी नॉलेज है कि किस तरह मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया जा सकता है। बट नाउ इट कम्स टू डायरेक्शनल एस्पेक्ट। भाई एरिया अगर एक वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड का ठीक है, बट हाउ वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। एरिया the direction ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ we simply need to draw a normal to a given surface or a given point. For example, suppose this is a board. This board has got dimensions of length as well as breadth, so it has got certain area. But अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ it is facing you, right? तो तुसी की करना है इस सरफेस दे किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना है आउटवर्ड्स। नॉर्मल ड्रॉ करना है आउटवर्ड्स। नाउ फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ अ लाइव एग्जांपल। You all have seen this thing, तो सारे ने ये चीज देखी होगी। This is something which we call umbrella। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਦੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, this pointer is fixed to this surface, ਇਸ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਫਿਕਸ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਔਰ ਇਸ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟਰ ਹੈ it is outwards normal। see ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਸ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਲਡ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਸੋ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਬਟ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਰਮਲੀ ਅਪਵਰਡਸ, ਰਾਈਟ? ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਓ ਦਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਟੁਵਰਡਸ ਦਿਸ ਸਾਈਡ, ਰਾਈਟ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਸੋ ਨਾਓ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਲੋਂਗ ਦਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ? ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਗॉट ਇਟਸ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਪਾਰਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਇਟਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਨਾਰਮਲ ਟੂ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਐਂਡ ਦ ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਰਮਲੀ ਆਊਟवर्ड्स, ਉਹ ਨਾਰਮਲੀ ਆਊਟवर्ड्स ਹੋਏਗੀ, ਰਾਈਟ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? देखो दोबारा तो समझो। सपोज आई टेक अनदर एग्जांपल। मान लो अब मेरे लिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। नाउ दिस इज ए काइंड ऑफ रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਬਈ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਔਰ ਚੌੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਥਿੰਗ ਵਿਲ ਗਿਵ ਅਸ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਐਸਪੈਕਟ। ਬਟ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਦਿਸ ਫੇਸ, ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬੀ ਅਲੋਂਗ ਦਿਸ ਸਾਈਡ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ? बट अगर मैनू कोई पूछे भी इस फेस का एरिया तो मैग्नीट्यूड तो वही होएगा जो पिछले का है, बट डायरेक्शन किधर होएगी तो एदी डायरेक्शन होएगी नॉर्मली आउटवर्ड्स। कहने का मतलब ये है भी एक सिंगल फेस है, दिस इज व्हाट वी कॉल ओपन सरफेस।
ਇਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਓਪਨ ਸਰਫੇਸ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਓਪਨ ਸਰਫੇਸ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਓਪਨ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਜੋ ਏਰੀਆ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੈ that we can calculate by geometry, ਬਟ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ you simply need to draw a normal outwards। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਏਰੀਆ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਧਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਏਰੀਆ ਦੀ डायरेक्शन इस तरफ है, ਹੁਣ ਏਰੀਆ ਦੀ डायरेक्शन नीचे है, और ਹੁਣ ਏਰੀਆ ਦੀ डायरेक्शन से इस तरफ है, like this। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ओपन सरफेस ਦੀ, बट इमेजिन करो भाई साडे लिए एक क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस, सपोज आई ड्रॉ ए पिक्चर, मैं ਤੁਹਾਡੇ सामने एक पिक्चर ड्रॉ करदा हां। इस शेप ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ बेटा सारे जानते हो, दिस इज ए काइंड ऑफ क्यूबॉइड या रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है ना, रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड कह सकते हैं या क्यूब कह सकते हैं इफ ऑल द डायरेक्शन ऑल द लेंथ्स आर सेम, से लाइक दिस। ठीक है, अगर बच्चों इन्हों ध्यान दे नाल देखोगे तो इट हैज गॉट 6 फेस। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਫੇਸ ਨੇ, 6, 1 2 3 4 5 ਤੇ 6, राइट। अगर ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ। ਜੋ ਲੈਂਥ ਹੈ ਜੋ ਬ੍ਰੈਡਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਬਟ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਰਮਲੀ ਆਊਟਵਰਡਸ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯੈਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਓਪਨ ਫੇਸ। बट now since it is the part of a closed phase है ना, तो ਹੁਣ ਇਹਦੀ डायरेक्शन नीचे नहीं लेनी। ਹੁਣ ਅਸੀਂ कन्वेंशन नहीं लेती हुई है कि डायरेक्शन will be normal to the surface outwards, ऊपर ਨੂੰ लेनी है, outwards लेनी है। ਇਹਦੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਤਰਫ, ਇਸ ਫੇਸ ਦੀ rightwards, ਇਸ ਫੇਸ ਦੀ leftwards, ਇਸ ਫੇਸ ਦੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ inwards, right। ਹੁਣ ਦੇਖੋ आ वाला जेड़ा फेस है ना, लुक एट दिस, जेड़ा आ वाला फेस है इधर आ, हुन एदी डायरेक्शन असी इस तरह नहीं लेनी, नॉट लाइक दिस, है ना। ये असी एक कन्वेंशन बनाया है कि किसे अगर ता ओपन फेस होएगा ओदी ता डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड्स किधरे भी ले लो, ऊपर नीचे जिवें भी लेनी है ले सकते हैं। बट अगर एक क्लोज्ड फेस है ता जेड़ा क्लोज पार्ट है ना ओदी डायरेक्शन नॉर्मल आउटवर्ड्स लेनी है, ना कि इनवर्ड्स लेनी है। Got it? So this is one thing. So we have understood that there is something called as area vector which has got two things, one is magnitude and second is direction। तो अगर मान लो किसी भी suppose this is the face, इस face ਦਾ area vector ਅਸੀਂ calculate करना है तो ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, we have got two things, first part is magnitude, पहला पार्ट बच्चों की आएगा मैग्नीट्यूड, और देखो फिर हुन इस दी ਜਿਹੜੀ डायरेक्शन है इट इज आउटवर्ड्स, तो उस डायरेक्शन ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ n cap ਦੇ ਨਾਲ। नाउ व्हाट इज दिस n cap? n cap इज ए यूनिट वेक्टर। n cap ਕੀ ਹੈ बच्चों, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, और किधर ਨੂੰ ਲੈਤਾ ਫॉर ए क्लोज सरफेस, आउटवर्ड्स, किधर ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ आउटवर्ड्स। देखो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇजिन ਕਰੋ एग्जांपल ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ मान लो एक स्फीयर है। ਹੁਣ देखो वैसे तो ये 3D फिगर है बट इस बोर्ड पे 3D बनाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सो इमेजिन कर लो कि एक स्फीयर है और इस स्फीयर का आहा सरफेस एरिया है, छोटा सा एरिया ले लिया, ठीक है बेटा। देखो आ सेंटर है और इथों दी लेके इथे तक दी दूरी रेडियस है, ठीक है जी। हुन इस पूरे सरफेस का जो एरिया होएगा दैट कुड बी 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर हुंदा है। बट आ छोटे जे पोर्शन का एरिया मैनू पता नहीं है, सो लेट अस अज्यूम दिस हैज टू बी DA, छोटा जा एरिया है DA। हुन इस एरिया का मैग्नीट्यूड तो चलो अगर असी लेंथ की मेजरमेंट कर सकते हैं तो कर लांगे, है ना। बट द पॉइंट इज अबाउट डायरेक्शन, क्योंकि असी डायरेक्शन की डिस्कशन अज मेन करनी है। तो देखो आ लाइन है जी, दिस इज ए रेडियल लाइन, और तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि किसी भी स्फीयर दे सरफेस तो अगर कोई लाइन सेंटर करनी जा रही होवे सो दिस लाइन इज नॉर्मल टू द सरफेस,
ਇਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਫ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਰਮਲ ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਨਾਓ ਦਿਸ ਵੈਕਟਰ will give me the direction of area vector। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਬਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ n cap ਲਿਖ लो या बच्चों dA cap लिख लो, इको ही गलबात है, there is no big deal in this। so what I'm trying to say, मैं कहने ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। one part is magnitude and second part is direction। और एरिया याद रखियो एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर दी डायरेक्शन देने दे लई पर्टिकुलरली फॉर एरिया वेक्टर असी हमेशा एट एनी पॉइंट ऑन ए गिवन सरफेस नॉर्मल ड्रॉ करांगे। और अगर तो ओपन सरफेस है तो नॉर्मल कुड बी इधर अपवर्ड डाउनवर्ड या डिपेंडिंग अपॉन द ज्योमेट्री लेफ्टवर्ड राइटवर्ड्स, बशर्ते इट शुड बी ओपन फेस। बट इफ इट इज ए क्लोज्ड सरफेस ਤਾਂ ਜੋ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਨਾਰਮਲ ਟੂ ਐਨੀ ਗਿਵਨ ਫੇਸ ਬਟ ਇਨ ਦਾ ਆਊਟਵਰਡਸ डायरेक्शन। आउटवर्ड नॉर्मल जो है वो लेना है, राइट। सो बच्चे हम जी आप चीज डिस्कस करन जा रहे हैं वो अगली फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस करन जा रहे हैं विच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नो समझण तो पहला लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाट डू वी मीन बाय फ्लक्स। फ्लक्स तो असी की समझते हाँ, तो देखो फ्लक्स नो समझण तो पहला इमेजिन करो, मान लो थोड़े रूम दे विच एक विंडो है और उस विंडो दे विच एसी फिट किया होया है, या एवं समझ लो कि उस विंडो के थ्रू एयर जिहड़ी है वो रूम दे अंदर आ सकती है, राइट। हुण देखो बेटा तुमने प्रीवियस क्लास च पढ़िया सीगा कि एयर फ्लूइड है, पानी दी तरह ही आपां इहनूं समझदे हां। और पानी जिहड़ा है वाटर या एयर दे प्रोपेगेट, दे ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम लाइन्स। जिहड़ी हवा है वो स्ट्रीम लाइन्स दी फॉर्म दे विच अंदर चलती है, मतलब किसी भी डायरेक्शन प्रोपिगेट करती है, अगाह बढ़ती है। हुण देखो जिहड़ी हवा चलती है ना उहदे लई दो चीजां हुंदियां ने, एक हुंदी है रफ्तार, रफ्तार दा मतलब स्पीड, वेलोसिटी, और दूजा हुंदा है पैनापन, तिखापन, भी हवा कितनी तेज आ रही है या कितनी हौली आ रही है, राइट। हुण जदों वो हवा विंडो दे थ्रू साडे रूम च एंटर करती है तो हवा सारिया डायरेक्शंस च फैल जाती है, इट स्प्रेड्स आउट इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस, राइट। इन्नी गल समझ आई? दोबारा तो सुनो। सपोज देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वाटर। मान लो साडे लिए एक बकेट पानी दी है और असी पानी नू इस तरह इस कमरे दे विच डोलिया फैला दिता है ना, सपोज आई थ्रो इट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। हुण जिहड़ा पानी है इट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम लाइन्स, राइट। और जदों पानी जाएगा ना तो इस कमरे दे फर्श ते सारिया डायरेक्शंस च फैल जाएगा। क्लियर है? दोबारा तो सुनो। मान लो मैं उरे खड़ा हाँ और इस कमरे दे विच एयर एंटर कर रही है, से फ्रॉम दिस साइड, राइट। हुण जदों एयर आएगी तो व्हाट विल हैपन, इस रूम नू अगर देखो तो इस रूम दियां 8 वॉल्स ने, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट ते फ्रंट बैक। क्लियर है? हुण जिहड़ी एयर आएगी वो इस कमरे दे विच मेरी बॉडी दे नाल लिंक होएगी, फ्रंट तो बैक तो, लेफ्ट वेज टॉप बॉटम सारी तरफ तो, और वॉल्स दे नाल भी लिंक होएगी, लेफ्ट राइट फ्रंट बॉटम बैक टॉप बॉटम सारी डायरेक्शंस जाके लिंक होएगी, टच होएगी, राइट। तो ये जिहड़ी एयर दियां स्ट्रीम लाइन्स ने, इन्हां स्ट्रीम लाइन्स दा किसी भी एक ऑब्जेक्ट दे नाल, सपोज मेरी बॉडी है या रूम दी वॉल है, किसी भी ऑब्जेक्ट दे नाल लिंक होना, इस चीज नूं बच्चों कहने हां फ्लक्स। ठीक है? तो देखो मैं गल कीती एयर दियां स्ट्रीम लाइन्स एंटर करियां, वो मेरी बॉडी दे नाल लिंक होईयां, सो दिस इज कॉल्ड एज एयर फ्लक्स। हुण दूजी एग्जांपल देती सी पानी थ्रो कीता,
ਉਹ ਪਾਣੀ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ 'ਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਲਿੰਕੇਜ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵਾਟਰ ਫਲਕਸ, ਰਾਈਟ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਮੇजिन ਕਰੋ ਬਈ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਹੈ ਚਾਰਜ ਦਾ, ਕੀ ਹੈ, ਚਾਰਜ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ 'ਚ, ਔਰ ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਇਮੇजिन ਕਰੋ ਸਪੋਜ਼ मैंने कोई आ यूनिट एरिया ले लिया, ठीक है। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਰੱਖਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗॉट ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ। ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਲਿੰਕਡ ਵਿਦ ਦਿਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਏਰੀਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕੇਜ ਹੈ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਦਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਦਾ, ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਦਾ। So that linkage of electric field lines with any given area, उस चीज ਨੂੰ ਅਸੀਂ जनरल कहांगे electric flux, ठीक है। So if we need to define it, अगर ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ define करना है कि what is electric flux, ਤਾਂ ਇਹਦਾ आंसर है field lines getting linked with an area, ठीक है बच्चों। ਹੁਣ अगली गल सुनो, अगर देखो पहले केस में इना एरिया लेता सी, नाउ इमेजिन करो मेरा एरिया जो है वो इस मैग्नीट्यूड का है, तो अगर इस जगह पे इंस्टेड ऑफ दिस एरिया मैं आ वाला एरिया रखांगा तो ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕੇਜ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਲਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੋ ਫਲਕਸ ਕੀ ਹੈ, ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਗੈਟਿੰਗ ਲਿੰਕਡ ਵਿਦ ਐਨ ਏਰੀਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਫਲਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਫਲਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸੈਕੰਡ केस 'ਚ ਫਲਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ व्हाट आई मीन टू से कि जितना बड़ा एरिया होएगा उतना ज्यादा फ्लक्स लिंक होएगा, उन्नियां ज्यादा फील्ड लाइंस लिंक होंगियां। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, फ्लक्स का सिंबल है फाई, देखो इस तरह लगाना है। सो दिस इज समथिंग व्हिच वी कॉल इट एज फाई। तो फ्लक्स केड़े फैक्टर से डिपेंड करता है, तो बेटा तुसी कहोगे इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। हुण अगली गल सुनो, मान लो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड सीगा 2 कूलम, इन्नियां लाइंस निकल रही सीगियां, इस चार्ज नू असी एनहांस करके करता 4 कूलम, तो चार्ज दे मैग्नीट्यूड दी स्ट्रेंथ बढ़ाती, तो हुण जिहड़ियां नंबर ऑफ लाइंस ने उन्हां दा भी की होएगा, बढ़ जाएंगे। समझ आ रही है? नंबर ऑफ लाइंस हैव इंक्रीज्ड। तुसी याद करो, तुमने पढ़िया होया है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हुंदा है KQ अपॉन R स्क्वायर। तो अगर मैं Q बढ़ाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़िया, क्लियर है? तो अगर असी चार्ज बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़न दे नाल किसी भी ऑब्जेक्ट दे नाल फ्लक्स का लिंकेज भी बढ़ रहा है, तो असी ये कहांगे कि जिहड़ा फ्लक्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, it is directly proportional to strength of electric field, right? तो if you want to ask me कि सर फ्लक्स केड़े केड़े फैक्टर से डिपेंड करता है, so what I'll say कि बेटा फ्लक्स जेड़ा है it is directly proportional to area, भाई मैग्नीट्यूड कितना है ऑब्जेक्ट दा, and it is directly proportional to strength of electric field। हुण इस तो अलावा फ्लक्स एक होर फिजिकल क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं मैं कह सकता, एक होर चीज से भी डिपेंड करता है। देखो इमेजिन करो भी इस सोर्स तो लाइंस आ रही ने एवं बाहर लाइक है ना, और हुन सोचो कि ये जो मैं एरिया ये सामने रखा, सो आई कीप इट लाइक दिस, तो ये फुल फेस है दा, तो जिन्नियां लाइंस आ रही ने डिपेंडिंग अपॉन इट्स साइज सारियां ने सारियां जिन्नियां पॉसिबली लिंक हो सकदियां ने इहदे नाल होणगियां, ठीक है। पहली गल वो ਅਸੀਂ पढ़ चुके हैं कि एरिया ते डिपेंड करता है,
मतलब अगर ਇਹਦਾ मैग्नीट्यूड बड़ा कर ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ फ्लक्स ਦਾ लिंकेज ज्यादा ਹੋਏਗਾ, बट इस केस लाइंस ਦੀ लिंकेज मैक्सिमम है। ਹੁਣ देखो मैं ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ इस तरह ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਦੀ ਲਿੰਕੇਜ ਸੀ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਰੱਖਤਾ, ਇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਰੱਖਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕੁ ਲਾਈਨਸ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਫੇਸ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਏਰੀਆ ਘਟ ਗਿਆ। ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਫਰੰਟ ਵਿਊ, ਏਰੀਆ ਘਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕੇਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਲਿੰਕੇਜ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲਿੰਕੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਟ ਵਿਲ ਕੀਪ ਔਨ ਚੇਂਜਿੰਗ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸੋ ਲਿੰਕੇਜ ਫੇਰ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਲਕਸ ਦਾ ਲਿੰਕੇਜ ਹੈ सिर्फ एरिया ते इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ते ही नहीं डिपेंड करता, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ इट also depends upon orientation, it also depends upon orientation। now what is the meaning of this orientation? orientation ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ एंगल ਤੇ डिपेंड करता है। ਕਿਹਦੇ ਤੇ डिपेंड करता है? एंगल ਤੇ। एंगल ਕਿਹੜਾ? ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੈ इलेक्ट्रिक फील्ड ਤੇ एरिया वेक्टर ਦਾ एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड ते एरिया वेक्टर ਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਈ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਇਸ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਇਸ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਆ ਏਰੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਕਮਿੰਗ ਆਊਟਵਰਡਸ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨੀ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਆਊਟਵਰਡਸ, ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲਾਈਨਸ ਲਿੰਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, है ना। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਚ ਸੋਚੋ ਵੀ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਚ एंगल कितना है? 0, राइट। क्योंकि देखो एरिया वेक्टर नॉर्मल आउटवर्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, तो दोनों दे विच एंगल कितना है? 0। अगर मैं इन्हू इस तरह करदा तो सोच के देखो एरिया वेक्टर दी डायरेक्शन इधर हो जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड दी डायरेक्शन इस तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ते एरिया वेक्टर च हुण एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। यस, वेरी राइट। और देखो हुण इस तरह करता, हुण मैं इस फेस नू ही देख रहा है ना, आई एम लुकिंग एट दिस फेस जो पहला तुहाडे कन्नी पॉइंट आउट कीता सी। ਹੁਣ ਇਹਦੀ डायरेक्शन इधर ਨੂੰ है, एरिया वेक्टर इधर ਨੂੰ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो ਹੁਣ फ्लक्स कितना होएगा? 180 डिग्री विद दिस पर्टिकुलर फेस। और ਹੁਣ सॉरी फ्लक्स नहीं एंगल, ਹੁਣ एंगल कितना होएगा? 180 डिग्री। अच्छा ਹੁਣ देखो, ਹੁਣ एरिया वेक्टर इधर है और फील्ड इधर है, तो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ इस एंगल ਨੂੰ या तो 90 कह सकते हो या 270 कह सकते हो। समझ आ रही है? तो ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली फ्लक्स ਜਿਹੜਾ है वो चेंज ਹੁੰਦਾ जाएगा। ਹੁਣ देखो इस केस when it is like this फ्लक्स मैक्सिमम है, राइट, फ्लक्स मैक्सिमम है पर एंगल कितना है? 0। एंगल कितना है? 0। एंगल 0 है, फ्लक्स मैक्सिमम है। ਇਹ ਕਦੋਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕੋਸਾਈਨ ਦੀ ਫਾਰਮੈਟ ਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਪਾਈਏ। ਕਿਹਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਚ? ਕੋਸਾਈਨ ਦੇ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ, मान लो इनू देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़े करनी है, एरिया वेक्टर इस तरफ है, एंगल कितना? 90 डिग्री, बट फ्लक्स कितना? तो नाम मात्र दा है। तुसी कहोगे सर 0 है, क्योंकि सारियां लाइंस सीधियां जा रही ने, इहदे नाल तां लिंकेज नाम मात्र दी हो रही है। तो थीटा इस केस इलेक्ट्रिक फील्ड ते एरिया वेक्टर च 90 डिग्री है, बट फ्लक्स मिनिमम है। ये कदों पॉसिबल है? ये उदों पॉसिबल है जदों थीटा 90 एज ए फंक्शन ऑफ कोसाइन लेता जाए। सो व्हाट आई मीन टू से कि जदों असी लिखांगे ना ओरिएंटेशन, तो ओरिएंटेशन दे विच हियर वी विल बी राइटिंग कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोसाइन ऑफ थीटा। नाउ व्हाट इज दिस थीटा? दिस इज एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, राइट। हुण अगली गल सुनो, ये सारे फैक्टर्स नू कंबाइन करया ਤਾਂ ਫਲਕਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਿਆ E A cos of theta phi। फ्लक्स का बच्चे सिंबल की है phi, right? Now the next thing, very important thing, what is flux? Number of field lines getting linked with an area। दोबारा तो सुनो, what is flux? Number of field lines getting linked with an area। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 에ਅਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ, ਬਈ 에ਅਰ ਦੀਆਂ ਸਟ੍ਰੀਮ ਲਾਈਨਸ ਆਈਆਂ ਥਰੂ ਵਿੰਡੋ ਔਰ ਉਹ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ 'ਚ ਫੈਲ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਉਹ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਣਾ, that is something called as flux, that is something called as flux। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਉਹ ਲਾਈਨਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਲਾਈਨਸ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਤਰਫ ਜਾ ਕੇ ਲਿੰਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਟ ਲਿੰਕ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਲਕਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਗੈਟਿੰਗ ਲਿੰਕਡ ਵਿਦ ਐਨ ਏਰੀਆ। ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏਗੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ, that will be the later course of talk। ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲਾਈਨਸ ਗੈਟਿੰਗ ਲਿੰਕਡ ਵਿਦ ਐਨ ਏਰੀਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਫਲਕਸ। ਤਾਂ ਲਾਈਨਸ ਆਈਆਂ ਔਰ ਇਸ ਕਮਰੇ ਚ 4 ਤਰਫਾ ਫੈਲ ਗਈਆਂ ਜਾਂ 8 ਤਰਫਾ ਫੈਲ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਲਾਈਨਸ ਲਿੰਕ ਹੋਈਆਂ, that linkage is flux। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ that means ਕਿ ਫਲਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਐਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਐਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿੰਕ ਹੋਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫਲਕਸ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਸਕੇਲਰ। ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ? ਸਕੇਲਰ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਸਕੇਲਰ, ਇਹ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਫਲਕਸ ਸਕੇਲਰ ਹੈ। ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਹਲੇ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਨੇਚਰ ਦਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ, ਨੇਚਰ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਔਰ ਏਰੀਆ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਕੇਲਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੈਕਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੋਸਾਈਨ ਐਜ਼ ਅ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ ਦਿਸ ਕੋਸਾਈਨ ਆਫ ਥੀਟਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਦੀ ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪੜੀ ਸੀ, ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਰੀਕਾਲ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਤੇ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਏਗੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆਫ ਸਕੇਲਰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ cos ਥੀਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ sin ਥੀਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੇਸ 'ਚ ਜੋ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। Got my point? ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ cos ਥੀਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੇਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਕੇਲਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਵੀ ਇਸ ਫੈਕਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। Got my point? This is a very important and typical knowledge which I have shared with you. Anyway, so flux ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੱਚਿਓ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ? ਤਾਂ flux in general is written as EA cos of theta, or in other terms ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ E vector dot A vector, E vector dot A vector। ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਤੋਂ what we will do, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਲਕਸ ਦੇ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਕੂਲਮ, ਔਰ ਏਰੀਆ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੈ? ਮੀਟਰ ਸਕੁਆਇਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ ਸਕੁਆਇਰ ਪਰ ਕੂਲਮ। ਦਿਸ ਇਜ਼ योर SI ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ। ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਨਿਊਟਨ फोर्स है और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mlt-2 है, मीटर लेंथ है और दो बार ही आ रहा है तो l स्क्वायर लिखांगे। तो जो l का स्क्वायर लिखांगे ऑलरेडी कैलसी तक क्यूब हो गया। कूलम चार्ज है और चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला at हुंदा है, a1 t1। तो इथे बेटा लिखा a1 और उरे लिखूंगा t1। उन्हें देखो t-2 ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ +1 ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ -1 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ SI ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਕੂਲਮ। ਤਾਂ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ mlt-2, मीटर का l स्क्वायर और कूलम का at, पर क्योंकि इनवर्स है तो माइनस, तो इन्हों लिखा गया ml क्यूब t -1 -2 ते -1। हाँ यस आई हैव डन ए मिस्टेक। इथे आएगा -3
और ए आएगा -1। दैट मीन्स ए वाला फॉर्मूला जिहड़ा है ये गलत बन गया सीगा। ठीक है जी। MLT2 MLT -2 और फिर L दा स्क्वायर और कूलम दा AT और इनवर्स करना है तो ML³ T -1 -2 -3 और A -1। हाँ ये बनेगा राइट। ठीक है तो इसमें नोट कर लो फटाफट। अब अगली चीज से मूव करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट नेक्स्ट थिंग। तो बच्चे देखो एक इमेजिन करो, मान लो आ कोई ओपन फेस है। ठीक है हुन इस ओपन फेस का एरिया वेक्टर इधर है और सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी एवं जा रही हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इस तरह ने। तो हुन अगर तुसी ध्यान दे नाल देखोगे तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। किस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड है? से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होएगा तो सानू फ्लक्स कैलकुलेट करने च कोई भी दिक्कत नहीं है। सिंपली फाई नू लिखो E डॉट E, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो अगर एक ओपन फेस है तो उस ओपन फेस का एरिया, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दसो ते फ्लक्स लिखो, कैलकुलेट कर लो। इथे बेटा E cos थीटा लिख देंगे और थीटा की जो भी वैल्यू होएगी अकॉर्डिंगली असि कैलकुलेट कर लांगे। ये सीगा फॉर सिंगल फेस। हुण अगली गल सुनो, मान लो कोई क्लोज्ड ऑब्जेक्ट है ना, सपोज इस तरह का ऑब्जेक्ट है और इसको असी रखिया एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे विच। किहड़े फील्ड दे विच बेटा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे विच, राइट। कंडीशन वही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह का है? यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह का है? यूनिफॉर्म। हुन जदों इस क्लोज्ड ऑब्जेक्ट दे नाल असी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है ना, तां असी करांगे की? तो ना आंसर बड़ा सिंपल है। आ जो क्लोज्ड बॉक्स है ना, इस दे असी सिमेट्रिकली इक्वल पार्ट्स कर दांगे। सिमेट्रिकली इक्वल पार्ट्स कर दांगे। तुसी ध्यान दे नाल देखो, इहदे 6 फेस नहीं, 1 ते आह 2। मैं लिखदा ना, इस नूं लिखिया मैं 1 और इस नूं लिखिया 2। आ वाला जिहड़ा फेस है 3 और आ वाला जिहड़ा फेस है 4। होर किहड़ा बचा? आ 1 हो गया, ये बैक साइड 2 हो गया, ये लेफ्ट साइड 3 हो गया, ये 4 हो गया और आ जिहड़ा टॉप साइड है दिस इज 5th और आ जिहड़ा बॉटम फेस है दिस इज 6th। बच्चे जदों हुन फ्लक्स कैलकुलेट करना है ना, तो हुन एवें दा सिंबल ही पाना, राइट। हुन असी सिंबल पावांगे लाइक दिस। देखो हुन मैं इथे लाइंस लगाइया नहीं ऊपर नीचे। जदों इस तरह लिखा जाएगा ये इंडिकेट करना है कि नाउ वी आर कैलकुलेटिंग फ्लक्स विद ए क्लोज्ड सरफेस। फ्लक्स विद ए क्लोज्ड सरफेस। तो हुन इहदे च करना की हुंदा है, असी कल्ले-कल्ले फेस दा फ्लक्स कैलकुलेट करांगे और उन्हां नूं आपस ऐड कर दांगे। सिंपली ऐड करांगे। रीजन बीइंग फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। रीजन बीइंग फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। सो बेटा जदों असी इस क्लोज्ड फेस दे नाल, क्लोज्ड ऑब्जेक्ट दे नाल फ्लक्स लिंक्ड कैलकुलेट करना है, तो ये जिहड़ा बॉक्स है इहदे असी 6 टुकड़े करते। तो असी करांगे कि असी पहला देखो एवें लिख सकते हैं। देखो अदरवाइज कल्ले-कल्ले दा कैलकुलेट करो और सारियां च ऐड कर दो, है ना। तो ऐड करन दे प्रोसेस नूं तुसीं सारे समझ लो, इंटीग्रेशन। तो असी की करांगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म मनदे हुए इलेक्ट्रिक फील्ड नूं इनू मल्टीप्लाई करांगे एरिया दे नाल और इथे पा दांगे इस तरह दा क्लोज्ड। देखो ये छोटा जा एरिया है, छोटा जा एरिया मतलब किसी एक फेस का एरिया है। इथे लिखता मैं इस तरह क्लोज सिंबल बनाता, इस तरह गोला जा बनाता। इनू बेटा की बोलना है? इनू बोलना है क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल। दोबारा तो सुनो, एक गोले का मतलब की है क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लैंग्वेज बोलनी जरूर सीखियो, एक दो बारी रिवाइंड करके इस चीज को दोबारा समझियो। एंड दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हुण बेटा इनू लिखांगे किवें? तां इसनू लिखांगे E डॉट ds
इथे मैं फर्स्ट लिखता, मतलब मैं पहला फेस ले लूंगा, पहला फेस इनू 1 नंबर दे देने, फिर प्लस करके लिखांगे ई डॉट डी एस, दूसरा लिख देंगे, दूसरा सी इनू मन्या है, सॉरी ये बैक साइड नु मन्या है, याद रखियो किनू मन्या है। तीसरा लिखांगे ई डॉट डी एस ओवर थर्ड। अच्छा ध्यान देखो, मैं इक्वल जदों लिखता इस तो पहले तो मैं क्लोज पाया, गोला बनाया, पर इस तो बाद गोला नहीं बनाया, दैट मींस दीज आर ओपन सरफेसेस। ये केड़े सरफेस ने? ओपन। प्लस इंटीग्रल ई डॉट डी एस फोर्थ प्लस इंटीग्रल ई डॉट डी एस फिफ्थ प्लस इंटीग्रल ई डॉट डी एस सिक्स्थ। ठीक है जी, हुण आओ शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट फेस आ मन्या है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है और ए फेस तुहाडे कन्नी झाक रहा है, तो इहदा एरिया वेक्टर आउटवर्ड्स है। तो फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ते एरिया वेक्टर च एंगल कितना है? 90 डिग्री, राइट। तो अगर 90 डिग्री है तो इस चीज को असं लिखांगे ई डी एस कॉस ऑफ 90 प्लस सेकेंड फेस दे आ जाने, सेकेंड फेस आ बैक वाला है, एदा एरिया वेक्टर अंदर होएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इस केस एंगल भी कितना है? 90 डिग्री। तब मैं दोबारा लिखने की बजाय इथे 2 लिख देना, क्योंकि इधर एरिया सेम होएगा। हुण आ जाओ थर्ड केस से, थर्ड केस आ वाला है, दिस वन। हुण एदा एरिया वेक्टर इस तरफ है, इस तरफ, पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इहदे केस दे लई थर्ड दे लई इलेक्ट्रिक फील्ड ते एरिया वेक्टर च एंगल कितना है? 180। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, cos 180 हो गया। अब फोर्थ आ जाओ, उन फोर्थ केस एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, तो हुण थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो फोर्थ केस दे लिए लिखांगे ई डी एस कॉस ऑफ 0। बच्चे हुण आओ फिफ्थ फेस से, अब ऊपर वाला, एदा एरिया वेक्टर बेटा ऊपर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो थीटा 90 डिग्री है, तो उरे 2 लिखे, 2 की जगह 3 लिख देंगे। हुण आओ बॉटम ते, एदा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर नीचे है, थीटा फिर 90 डिग्री हो गया, तो उरे कितना लिख देंगे? 4, 4 फेसेस की वजह करके हो गया। गॉट इट? समझ आया? टेल मी व्हाट इज cos 90? cos 90 इज 0, पहली गल, तो ये सारा का सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। दूसरी गल, व्हाट इज cos 180? cos 180 इज -1। अगर बच्चे cos 180 -1 है तो इसनू ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? 0 प्लस ई इंटीग्रल ds, और cos 180 माइनस ही, तो सॉरी माइनस आ जाएगा, माइनस इथे लिख देंगे, और इसनू की लिखांगे ई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, cos 0 कितना बेटा? 1, इंटीग्रेशन कर देंगे ds भी। ਹੁਣ ds ਨੂੰ जोड़ांगे, देखो मतलब आ वाला फेस है, इनू ऐड करांगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, और इनू ऐड करांगे ਇਹਦਾ भी टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। मान लो ਉਹਨੂੰ a ले लेने आ या s लिख लिया, इथे s लिख रहे हैं तो चलो s लिख लेने आ, तो ये लिखा जाएगा -es प्लस es, तो फ्लक्स कितना आएगा? 0। हाउ मच इज द फ्लक्स? 0। सो इस एग्जाम्पल के थ्रू ਅਸੀਂ ਇਹ डिस्कस करने की कोशिश की कि अगर साडे लिए एक क्लोज सरफेस होएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड च रखा हुआ है, तो फ्लक्स कितना होएगा। तो अगर फ्लक्स इस तरह जा रहा है तो इस केस 0 बनया। चलो एक काम करते हैं फटाफट, बहुत क्विकली आप एक होर एग्जाम्पल लेने इस फ्लक्स ਨੂੰ कैलकुलेट करने की। देखो तुम एक गल समझ आ चुकी है कि फ्लक्स बेसिकली है कि, तो फ्लक्स है लाइंस गेटिंग लिंक्ड विद एन एरिया, ठीक है। और हुण तुसी देखो एक होर एग्जांपल मैं लेके चल रहा हाँ, ये एग्जांपल है, फिर तो सेम ऑब्जेक्ट ले लिया, सेम ऑब्जेक्ट ले लिया, बट हुण इस ऑब्जेक्ट दे विच जिहड़ा फील्ड है ना, एक्चुअली पहला फील्ड बाहरों आ रहा सी, यूनिफॉर्म सी, हुण मैं सोर्स अंदर ही रखता, क्यूब ਇਹਦੇ अंदर, क्यूब दे अंदर ही रखता, तो हुण ਇਹਦੀ वजह करके देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह like this, और मतलब if you can make this line inside, तो inside दे लिए ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? will be putting cross, और outside दे ਲਈ dot, ठीक है। हुण ਇਹਦੇ 6 फेस ने,
फ्लक्स कैलकुलेट करना है, फिर तो वही काम करांगे, क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds सारे दा लिखांगे। हुण जरा ध्यान दे नाल देखो, इस फेस ਨੂੰ देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर भी मैं हुण S लिख रहा हूं। पिछली जगह बारी मैं A लिखता सी, सो आई एम करेक्टिंग माई सेल्फ S लिख रहा हूं। इथे इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इट हार्डली मैटर्स A लिखो S लिखो, यू मस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है, तो दोनों च एंगल कितना हो जाएगा 0 और cos 0 1 हुंदा है। हुण इहदी गल कर लो। अच्छा इनू मैं ना क्यूब मन के चल रहा, क्यूब का मतलब सारिया साइड्स की लेंथ बराबर है। सपोज क्यूब है जिसकी साइड है A, राइट बेटा। तो देखो इहदे नाल हो जाएगा E इंटू S। हुण इहदे नाल देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है और एरिया वेक्टर भी बाहर है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बाहर है? क्योंकि आ देखो पॉइंट चार्ज उन्हें रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ जानी है और इहदा फेस इधर नूं है, तो फिर इस केस एंगल भी 0 हो गया, पिछले वाले केस भी एंगल 0 होएगा, इस केस भी, ऊपर वाले केस भी, नीचे वाले केस भी। तो क्योंकि सारे केसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ते एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन च ने, तो थीटा जिहड़ा है वो सेम होएगा, दैट इज 0। तो इहदा जिहड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखा जाएगा 6ES। देखो E तो यूनिफॉर्म है, यदि वजह करके S ना सारी तरफ सेम है। S की है सरफेस एरिया किसी भी एक फेस का, और किसी भी एक फेस का सरफेस एरिया क्यूब का कितना होता है A²। तो बच्चों आ ਤੁਹਾਡਾ आंसर आ गया 6EA²। दिस इज द टोटल फ्लक्स लिंक। ठीक है, मान लो किसी एक फेस दे नाल कहा जावे, किसी एक फेस दे नाल, सो विद एनी वन फेस, विद एनी वन फेस, आंसर बेटा उस सेंस की आएगा EA²। समझ आएगा? देखो इस क्वेश्चन च एक गुगली मैं थोड़ी इंसर्ट करना। मान लो तुहानू कहा गया कि जिहड़ा इस क्यूब दे नाल लिंक फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स है वो है E इंटू A, है ना। स्टेटमेंट थोड़ा जिहा ध्यान नाल समझण दी कोशिश करियो, ये थोड़ी बुक्स का क्वेश्चन है। तुहानू कहा गया कि इस क्यूब दे नाल टोटल फ्लक्स लिंक्ड E इंटू A है, टोटल फ्लक्स लिंक्ड इस तरह बात है। वो कहेगा फाइंड आउट फ्लक्स लिंक्ड विद एनी वन फेस, तो हुण उन्हें गिवन क्वांटिटी है E इंटू A, ये टोटल फ्लक्स है। तो विद एनी वन फेस फ्लक्स लिंक्ड विद एनी वन फेस ओमेगा 1/6 ऑफ टोटल फ्लक्स। थोड़ा ध्यान नाल समझो। देखो इतने 6 ऑलरेडी मेंशन सीगा, तो किसी एक फेस नाल लिखा गया E इंटू A², पर इतने तो टोटल ही कह रहा भी इंटू A है, तो किसी एक फेस दे नाल कितना लिखा जाएगा 1/6 ऑफ टोटल फ्लक्स, राइट। तो ਇਹ ਸੀਗੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਫਲਕਸ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਹਾਊ ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਫਲਕਸ ਵਿਦ when the electric field is non uniform ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਏਰੀਆ non symmetrical ਹੈ। ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਅਗਰ non symmetrical ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਇਮੇजिन ਕਰੋ ਅਮਰੂਦ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਬੜ ਖਾਬੜ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਨ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਸਰਫੇਸ ਕਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਲਕਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਕਾਲਡ ਐਸ ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ ਜਾਂ ਗੌਸ ਲਾਅ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।